Hello friends, welcome to eFinance Study. I am Dr. Kamini Rai and I have started a series of important terminologies related to banking, finance and economics for you. What are the advantages of this program? This video is useful for the students giving bank PO and other bank exams, the students of UPSC, SSC and UGC NET exams, and it is also useful for those who are giving banking and finance related interviews. So friends, this is part 1 of this series in which I will cover the following topics, and the topics are non-performing assets with reference to banks, repo rate and reverse repo rate and their impacts on the economy and inflation, and at the last of this video we will discuss some multiple choice questions. So watch till end please and अंत तक देखें. So let's start. The first one is non-performing asset. As the name indicates that assets which are non-performing, वो asset जो perform नहीं कर रहा है with reference to banks. So in simple words we can understand it as an asset which is not producing any income. बैंक की वो asset जो कि कोई income produce नहीं कर रही है, or in other words we can say loans that banks are not able to recover. Suppose for example banks they have given some loan to the customers, and when these customers they are not repaying their loan, when banks are not able to recover this loan from the customers, तो उसे हम NPA means banks उसे NPA declare कर सकते हैं. So suppose we as a customer हम क्या करते हैं, when we have to take loan हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमें लोन देता है. So banks they provide loans to customers, and in return of this loan customer क्या देते हैं बैंक को, customer interest देते हैं बैंक को, और इस लोन पे कस्टमर्स क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट देते हैं. सो दिस इंटरेस्ट इज इनकम ऑफ द बैंक, बैंक की ये इनकम है. और इफ़ वी टॉक अबाउट द लोन, लोन इज एन असेट ऑफ द बैंक, क्योंकि बैंक जब चाहे उस लोन का अमाउंट रिकवर कर सकता है फ्रॉम द कस्टमर्स. एंड फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू लोन क्या है, लोन लाइबिलिटी है. वाई दिस इज लाइबिलिटी? बिकॉज द कस्टमर्स दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ दिस लोन टू द बैंक्स रेगुलरली. कस्टमर्स को इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पे करना होता है, बैंक्स को वो भी ऑन रेगुलर बेसिस. बट व्हेन कस्टमर्स दे आर नॉट रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज दे आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट, तो बैंक की जो इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम आनी है वो बंद हो जाएगी, इस लोन पे इनकम आना बंद हो जाएगा. सो इन दैट सिचुएशन बैंक्स दे में डिक्लेयर दिस लोन एज अ NPA. आई होप सिंपल फंडा आपको समझ में आ गया. तो NPA का क्या मतलब है, बैंक की वो असेट ऑन विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम, मतलब जो कोई इंटरेस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है. सो इफ वी टॉक अबाउट द कस्टमर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, कमर्शियल कस्टमर्स एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स. एज फॉर एज कमर्शियल कस्टमर्स आर कंसर्न, कमर्शियल कस्टमर का क्या मतलब होता है, लाइक बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रीज, दे आर कमर्शियल कस्टमर्स. And if we talk about the NPA of commercial customers, if NPA means if loan is overdue more than 90 days, 90 days तक these commercial customers they are not repaying their principal amount as well as the interest to the bank, तो बैंक इसे NPA declare कर सकता है. In the same way for domestic customers, if loan is overdue for more than 180 days, 180 days means 6 months तक, 6 months तक if these domestic customers they are not repaying their loan to bank, domestic customers means any individual, हमारे जैसे जो भी individual है they are domestic customers. So these domestic customers when they are not repaying their loan as well as the interest amount over up to 180 days means up to 6 months, so in that case बैंक में declare this loan as a NPA, बैंक उसे NPA declare कर सकती है. Now in simple language we can say it as like हम बैंक को रेगुलरली प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट भी दे रहे हैं, देन बैंक उस असेट को क्या बोलेगी, उस असेट को बोलेगी स्टैंडर्ड असेट, मतलब उस लोन को बैंक बोलेगी स्टैंडर्ड असेट. बट व्हेन वी आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट रेगुलरली, व्हेन वी आर नॉट पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट रेगुलरली, इन दैट केस बैंक्स उसे क्या बोल सकती है, बैंक्स उसे NPA डिक्लेयर कर सकती है. सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ NPA. एंड व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ NPA? NPA can be substandard assets,
डाउटफुल असेट्स एंड लोन असेट्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एनपीए की. एंड इन ऑल द टाइम्स यू मे सी हियर दैट एवरी टाइम वी आर कॉलिंग इट असेट. असेट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज बैंक्स वो एंड तक ट्राई करती हैं कि उनका ये लोन रिकवर हो जाए, इसलिए वो इसे असेट कहती हैं. सो इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड असेट का क्या मतलब होता है? व्हेन एनपीए फॉर लेस देन और इज इक्वल टू 12 months, अप टू 12 months, विद इन 12 months व्हेन बैंक्स आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक्स को असेट का मीन्स लोन का पैसा रिकवर हो जाएगा, तो उसे बैंक्स सब स्टैंडर्ड असेट कहते हैं. Doubtful asset, in case of doubtful asset, NPS for more than 12 months. It means when banks are expecting कि up to 12 months तो हमें लोन का पैसा रिकवर नहीं होगा, आफ्टर दैट ही हमें लोन का पैसा रिकवर होगा, तो उसे बैंक्स डाउटफुल असेट कहती हैं. एंड when there are very less chances to recover the loan, बहुत कम चांसेस हैं कि लोन रिकवर हो पाएगा, तो उसे बैंक क्या कहती है? उसे कहती है लॉस असेट. व्हेन देयर आर वेरी फ्यू वेरी लेस चांसेस टू रिकवर. So this is the process of NPA. Overall, we can say that NPA is not good for the health of economy. This is not good for the financial health of banks, because increased NPA means अगर बैंक की NPA increase हो रही है, it means banks are not able to give loan to the customers. banks customers को loan नहीं दे पाती हैं, and in that situation क्या होता है? banks की financial stability पे question mark लग जाता है. So if we talk about the current situation, because we are in the pandemic situation, there is lockdown in the economy, and along with lockdown there is slowdown in the economy. Economy में slowdown भी हो गया, because people they are losing their jobs, there is no financial stability in the businesses. So obviously in that situation RBI is expecting that NPA will increase in this financial year. So as per financial stability report, RBI expects that NPA to rise to 9.9% by September 2020, and this may happen. NPA increase हो सकता है because many people are there who are not repaying their loan timely. And if we talk about the last financial year, in last financial year gross NPA of public sector banks were more than private sector banks and foreign banks, and it is happening. ये लगातार हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो NPA हैं वो लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. एंड अगर हम टिल 2020 मतलब जून 2020 तक की बात करें, नो लिस्ट ऑफ NPAs ऑफ बैंक्स हैव बीन इशूड. बाय बिकॉज जो फाइनेंशियल क्लोजिंग डेट है वो बैंक्स की और कंपनीज की इंक्रीज हो गई है इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन. एंड द लास्ट वन, in the last financial year, if we talk about the financial year 2019, तो आंध्रा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में आंध्रा बैंक had the highest share of industry bad loan, followed by यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक. आंध्रा बैंक की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री बैड लोन थी, मीन्स इंडस्ट्री NPA थी, और उसके बाद यूनियन बैंक की एंड इंडियन बैंक की. So this is the current situation of NPA in India. The next one is the repo rate and reverse repo rate. आप अधिकतर सुनते होंगे that repo rate increase हो गया, reverse repo rate decrease हो गया. So ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब क्या है? ये सब है liquidity adjustment facilities. इसका मतलब क्या है? RBI कंट्रोल करती है इकोनॉमी में मनी को, राइट. सो सर्कुलेशन में जो मनी है, सर्कुलेशन में मनी कैसे सर्कुलेट करेगी, लाइक प्राइस लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये सब RBI के हैंड्स में है. सो इन दैट सिचुएशन RBI क्या करती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दीज आर द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन द हैंड्स ऑफ RBI. ये कंट्रोलिंग टूल्स होते हैं जिसे हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का क्या मतलब होता है? टू कंट्रोल मनी इन द इकोनॉमी में मनी को कंट्रोल करना. सो रेपो रेट स्टैंड्स फॉर रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट. एंड रिवर्स रेपो रेट स्टैंड्स फॉर रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट. सो ये दोनों एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है. In simple words, we can understand it as repo rate is the rate at which RBI lends money to commercial banks. Means वो रेट जिस रेट पे RBI commercial banks को लोन देती है, जिस रेट पे RBI commercial banks को लोन देती है. Like for simple example here, जब हमें लोन की ज़रूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं.
इन द सेम वे जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है. एंड वी हैव एन नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया एंड आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक. When commercial banks they take loan from the RBI, it means when RBI gives loan to commercial banks, और इस लोन पे कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, वो आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं. दिस इंटरेस्ट इज इनकम ऑफ आरबीआई एंड दिस इंटरेस्ट रेट इज नोन एज रेपो रेट. इस इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं. बट जो कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में लोन होता है वो नॉर्मल लोन नहीं है जैसे हम बैंक से लेते हैं, बल्कि ये एग्रीमेंट होता है. दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक्स. किस टाइप का एग्रीमेंट होता है? बिकॉज कमर्शियल बैंक्स वो सिक्योर्ड लोन नहीं ले, अनसिक्योर्ड लोन नहीं ले सकती हैं आरबीआई से. इन दैट सिचुएशन दे विल हैव टू टेक सम सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन के केस में क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटी रखती हैं और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है. तो कमर्शियल बैंक्स दे कीप कोलेटरल सिक्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद आरबीआई. कोलेटरल रखती हैं मीन्स गिरवी रखती हैं, हिंदी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं इसे, गिरवी रखती हैं आरबीआई के पास में कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी. और इनके बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट. इसका मतलब ये है जब लोन पीरियड पूरा हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पैसे वापस कर देगी. आफ्टर दैट कमर्शियल बैंक्स दे विल हैव टू रीपर्चेज देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द आरबीआई. और रीपर्चेज किस पे करेंगे, वो प्री डिटरमाइंड रेट पे करेंगे. एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू रीपर्चेज देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई. और इन केस में अगर ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज नहीं करते हैं, सो इन दैट सिचुएशन आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट ऑपरेशन में उसे क्या कर सकती है, सेल कर सकती है. राइट. इन द सेम वे रिवर्स रेपो रेट, अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें ये अपोजिट होता है रेपो रेट का. लाइक कमर्शियल बैंक्स को अगर लोन की ज़रूरत है वो आरबीआई के पास जाता है. इन द सेम वे इफ़ आरबीआई इज़ इन नीड ऑफ मनी तो वो कहाँ जाएगी, कमर्शियल बैंक्स के पास में. या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा कैश है, तो वहाँ आरबीआई के पास अपने पैसे को रख देते हैं फॉर इंटरेस्ट, टू अर्न इंटरेस्ट. सो इन दैट सिचुएशन आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देगी. दिस इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट. मीन्स आरबीआई जो इंटरेस्ट देती है कमर्शियल बैंक्स को उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. एंड इन द सेम वे आरबीआई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं ले सकती है, आरबीआई को सिक्योर्ड लोन लेना होता है. तो आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स के पास सिक्योरिटी के फॉर्म में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पे क्या हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं. और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड आरबीआई वो होता है रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक्स एंड द आरबीआई. इसका मतलब आरबीआई प्रॉमिस करती है कमर्शियल बैंक्स को कि जैसे ही लोन पीरियड पूरा होगा वैसे ही आरबीआई अपनी कोलेटरल सिक्योरिटी को वापस रीपर्चेज कर लेगी एट दी प्री डिटरमाइंड रेट पे, या फिर कमर्शियल बैंक्स उसे रीसेल कर देंगे. सो दिस इज द प्रोसेस. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो व्हाट इज द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट. Currently repo rate is 4% and reverse repo rate is 3.5% because गवर्नमेंट ने इसे कट डाउन किया है in this pandemic situation. So the difference between repo and reverse repo rate very important, एग्जाम में आता है generally difference between repo and reverse repo rate. In case of repo rate who is the lender? Lender is RBI. RBI दे रही है पैसा एंड बरोबर कौन है, वो कमर्शियल बैंक, वो पैसा लेते हैं. एंड इन केस ऑफ रिवर्स रेपो लेंडर इज कमर्शियल बैंक एंड बरोबर इज आरबीआई. इन केस ऑफ रेपो रेट द इंटरेस्ट रेट इज जनरली हायर देन रिवर्स रेपो रेट. अभी आपने देखा लास्ट उसमें कि करंट में 4% इज द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.5%. और ऐसा हमेशा होता है कि रेपो रेट जो है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है. सो ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट के केस में अपोजिट होगा कि रिवर्स रेपो रेट से कम होता है. Then in case of repo rate commercial banks they get fund from the RBI, and in case of reverse repo rate commercial banks they deposit their extra funds with RBI. In case of repo rate commercial banks they provide collateral security means government securities to RBI. वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखते हैं आरबीआई के पास में. रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट के केस में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखती है कमर्शियल बैंक्स के पास में.
रेपो रेट इज द रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट बिटवीन द आरबीआई एंड द बैंक्स, जहाँ पे बैंक्स आरबीआई को प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही लोन पीरियड पूरा होगा वैसे ही वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर लेंगे एट द प्री डिटरमाइंड रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट बिटवीन द कमर्शियल बैंक्स एंड द आरबीआई, जहाँ पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को प्रॉमिस करती है कि लोन पीरियड पूरा होने के बाद आरबीआई अपनी कोलेटरल सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लेगी एट दी प्री डिटरमाइंड रेट। आफ्टर दैट अगर हम रेपो पीरियड की बात करें तो रेपो पीरियड ओवरनाइट मीन्स 1 डे के लिए हो सकता है। टर्म रेपो होता है, टर्म रेपो भी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। इन केस ऑफ टर्म रेपो वो 7 डेज का हो सकता है। और सेम चीज़ रिवर्स रेपो के साथ है कि रिवर्स रेपो रेट 1 डे मीन्स ओवरनाइट का हो सकता है, या फिर टर्म रेपो के केस में वो 7 डेज का हो सकता है। 1 नाइट का क्या मतलब है कि विद इन 1 डे कमर्शियल बैंक्स को अपना लोन जो है वो वापस करना होता है, लोन का अमाउंट विथ इंटरेस्ट वो आरबीआई को वापस करना होता है और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई से परचेज कर लेना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि रेपो रेट जो होता है दिस इज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स इंक्रीज रेट पे मिलेगा और वो मार्केट में क्या करेंगे, मार्केट में वो और ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम बात करें कि रेपो रेट डिक्रीज हुआ तो कमर्शियल बैंक्स को और ज़्यादा लोन मिलेगा विद डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो मार्केट में और ज़्यादा लोन दे पाएंगे। तो रेपो रेट क्या होता है, ये मार्केट से मनी को ड्रेन करता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो मार्केट में सर्कुलेशन में मनी को इंक्रीज करता है। So in this way we have completed the difference between repo and reverse repo rate. Now it's time for the multiple choice questions. So multiple choice questions में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, like first one is what do we call a loan when remains NPA for the period less than or is equal to 12 months? वो लोन जो कि NPA है लेस देन या 12 मंथ्स में, like first option is doubtful debts, then substandard asset, then loss, and then none of above. So obviously it is doubtful debt. Answer is doubtful asset. Why it is doubtful asset? The answer is substandard asset. Why this is a substandard asset? क्योंकि अगर 12 मंथ से कम पीरियड के लिए कोई NPA है, इसका मतलब विद इन 12 मंथ्स उसको उस अमाउंट को हम रिकवर कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है सबस्टैंडर्ड एसेट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डाउटफुल एसेट। 12 मंथ से कम पीरियड का एनपीए है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड का एनपीए है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। नेक्स्ट वन इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट द सेंट्रल बैंक लेंड्स बैंक टू अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो कौन सा रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लोन देती है टू द कमर्शियल बैंक्स? ऑब्वियसली रेपो रेट, तो आंसर इज रेपो रेट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मीन्ड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कमर्शियल बैंक्स अपने सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेज नहीं करते हैं फ्रॉम आरबीआई से, इन दैट सिचुएशन क्या होता है, आरबीआई उसे ओपन मार्केट में सेल कर सकती है, एनी रेट, किसी भी रेट पे ओपन मार्केट में उसे सेल कर सकती है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट वन, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI. So in this way we have completed this part 1 of MCQs, part 1 of this video. If you like my video, please click the like button and don't forget to subscribe it. Thank you so much.